students, I hope you all are safe and fine at your places and doing well. So students, what we have done last week, we have finished the chapter struggling towards freedom. I have explained you this chapter. हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं एंड व्हाट वाज देयर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में क्या था कि फ्रीडम के लिए ड्यूरिंग व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलर्स जब हम पे रूल किया था, तो उस वक्त अपनी फ्रीडम के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया था, उनकी पूरी स्ट्रगल की स्टोरी थी ये कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ्रीडम पाने के लिए किस तरह के उन्होंने स्ट्रगल किया था, किस तरह का पीरियड उन्होंने किस तरह का फेस उन्होंने जो था देखा था, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या जो थे कोशिशें की थी. ऑल वाज देयर इन दिस स्टोरी. So this chapter basically we have finished. So now we will be doing question answers. आज हम क्या करेंगे, इसके question answers discuss करेंगे. We will be discussing the question answers and all the things related to the question answers will be clear to you, and I will be sharing PDF as well of question answers. You can write it from there as well, but today we will discuss the question answers so that जो भी इस chapter में है आपको फिर से एक बार recap हो जाएगा and all the things will be clear to you. Number 19, struggle towards freedom. So first of all, oral question and answers are there. So first question is, what was India earlier known as? India को earlier पहले क्या कहा जाता था? So we have studied in the chapter, India was earlier known as the golden bird. India को golden bird कहते थे. Who started the Indian National Congress? So इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी किसने शुरू की थी, किसने एस्टेब्लिश की थी? तो वी हैव स्टडीड इट कि A.O. Hume was a Englishman who started the Indian National Congress in 1885. So an Englishman named, आप इसमें A.O. Hume short form भी कर सकते हो, founded the Indian National Congress in 1885. After the short notes are there. First short note is Indian National Congress. So what is Indian National Congress? इन्होंने पूछा कि Indian National Congress क्या है. It was a group of educated Indians. क्या था ये? एक ग्रुप था educated Indians का, started by a Englishman, जिसको एक English people ने, Englishman ने start किया था. उसका नाम क्या था? A.O. Hume in 1885. और इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, and 72 delegates. It was attended by 72 delegates from all over the India. और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. Banerjee was its first president. As the time passed, Indian National Congress become popular. Indian National Congress जो थी टाइम के साथ साथ पॉपुलर होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई, और इसके अंदर जो थे लोग जो थे जो उन्होंने धीरे धीरे करके जो कॉमन लोग थे, कॉमन मैन थे, पब्लिक जो थी इंडिया की, उनके अंदर अपनी कंट्री के लिए लव की फीलिंग जो थी उसको जो जगाया. सो एज अ टाइम पास इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग एंड अवेकन द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस कंट्री इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल. मतलब जो आम जनता थी जिसको कहते हैं, उसकी जो दिल में एक प्यार की भावना अपने देश के लिए वो जगाई. So after that, who was Mangal Pandey? Short note on Mangal Pandey. He was a soldier in British Army. British Army में एक soldier थे और उन्होंने एक British officer को अटैक किया था 29 मार्च 1857. जब रिवॉल्ट शुरू हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें आपने पढ़ा था कि ली इनफील्ड राइफल्स जब दी गई थी और जो उसके काऊ और पिग के फैट से बनी हुई थी, जब लोगों को उसको अपने मुंह से छीलना पड़ता था, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था. सो दैट वाज 1857 का जो रेवोल्यूशन था, उसके अंदर उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक किया था, तो उसकी सज़ा उन्हें मिली थी एंड ही वॉज हैंग्ड ऑन 8th April 1857. So he was a soldier in British Army in India. On 29 March 1857 he attacked a British officer. उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अटैक किया near Calcutta. He was hanged on 8th April 1857.
उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन द रिजल्ट ऑफ सिपोय मुटिनी. So in 1858, the British government decided to end the rule of East India Company and control India. जब 1858 में ब्रिटिश लोगों को लगा कि नाउ इंडियंस आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको धीरे धीरे अपनी उनके अंदर फ्रीडम की फीलिंग आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके उन्हें अब डायरेक्टली जो है इंग्लिश गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर स्थापित कर देनी चाहिए. सो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया, जिससे कि उन्होंने बिजनेस इंडिया में ख़त्म करके एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड डायरेक्टली रूलिंग ओवर द कंट्री थ्रू इंग्लिश गवर्नमेंट. A viceroy was appointed to rule over India on behalf of the crown. एक वाइसराय को चुना गया जो कि जिसके बिहाफ पे जो थे सारे जो इंडिया में जो रूल करता था ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट. द पीपल ऑफ इंडिया वर प्रॉमिस्ड फ्रीडम टू फॉलो देयर कस्टम. उसमें क्या था, इंडिया के लोगों से ये वादा किया गया, उनसे ये प्रॉमिस किया गया कि उनको फ्रीडम है अपने कस्टम्स फॉलो करने का. और ऑन द अदर हैंड द इंडियंस ऑन द अदर हैंड रियलाइज इफ द यूनाइट दे कैन आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. और दूसरी तरफ इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जो है ब्रिटिश लोगों को अपनी कंट्री से निकाल सकते हैं. Answer the following. Why was India known as a golden bird in ancient time? गोल्डन बर्ड क्यों कहते थे इंडिया को एंशियंट टाइम में? बिकॉज इंडिया के अंदर वेल्थ थी, प्रोस्पैरिटी थी, टेक्सटाइल में रिच था, स्पाइसेस में रिच था, स्टोन्स में रिच था, पर्ल्स में, ज्वेलरी में इन सब चीज़ों में इंडिया रिच था. सो इंडिया वॉज नोन एज अ गोल्डन बर्ड इन एंशियंट टाइम बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी. इंडिया वॉज रिच इन टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े की जो मिल थी उसमें रिच था. कपड़ा बहुत हाथ का बारीकी का काम होता था. स्पाइसेस मसालों में रिच था. प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे यहाँ पे. ज्वेलरी बहुत मिलती थी, एंटीक ज्वेलरी थी इंडिया की, पर्ल्स, मोती. सो इन सब चीज़ों में इंडिया रिच था. इंडियन गुड्स वर वेरी पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड. इंडिया से जो बनी हुई चीज़ें थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बिकती थी, सो पॉपुलर थी. और आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का सामान फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है. यहाँ का सामान फॉरेन कंट्रीज़ तक में पॉपुलर है. लोग यहाँ से सामान लेके फॉरेन कंट्रीज़ में जो है बेचते हैं. हाउ डिड द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द फार्मर ऑफ इंडिया एंड वाई? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया, फार्मर्स को कैसे तंग किया इंडिया के, एंड वाई? द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया. उन्होंने ये जो पुअर फार्मर्स थे उनको तंग किया और उनको फोर्स किया गया कि कैश क्रॉप्स को जो है उगाना है, सो दैट उनकी जो इंग्लिश फैक्ट्रीज हैं उनमें रॉ मटेरियल मिल सके. सो द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर ऑफ इंडिया as they forced the Indian farmer to grow crops that would be used as raw material in इंग्लिश फैक्ट्रीज, जो रॉ मटेरियल की तरह इंग्लिश फैक्ट्रीज में यूज हो सके. बेसिकली कैश क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, लाइक वी कैन से कि कॉटन, कॉफ़ी, इस तरह की कैश क्रॉप्स. These were called as cash crops. The farmers were not allowed to grow food crop. As a result, they and their families starved. उनको फूड क्रॉप्स उगाने की परमिशन नहीं दी गई थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनकी फैमिलीज जो थी भूखी मरने लग गई. Where and why did the revolt of 1857 start? Why did it fail? So the revolt of 1857 started in मेरठ में स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, दिल्ली से लेके और इंडिया के अदर पार्ट्स में भी फैला. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मेरठ एंड स्प्रेड टुवर्ड्स दिल्ली एंड देन टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इट स्टार्टेड बिकॉज अ र्यूमर स्प्रेड इन ब्रिटिश आर्मी. अब इसका रीज़न क्या था, क्यों रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ? बिकॉज क्योंकि ये र्यूमर फैल गया ब्रिटिश आर्मी कैंप में कि कार्ट्रिजेस जो सोल्जर्स को दी गई हैं राइफल्स में डालने के लिए, दे आर मेड अप ऑफ फैट ऑफ पिग एंड काओ.
and they are greased with the this thing, और उससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो रिलीजियस फीलिंग थी उसको ठेस पहुंची. So the revolt of 1857 started in Meerut and spread towards Delhi and then to the other parts of India. It started because a rumor spread in the British army camp that the cartridges which were given to the soldiers to be used in their rifles and which had to be bitten by the soldier in order to be used were greased with the fat of cow and pig. This angered and hurt the Hindu Muslim religious feeling. So they refused, उन्होंने refuse कर दिया, they refused to obey their officers and revolted. However, the revolt failed because many Indians stayed away from the revolt. कुछ ने जो था इस रिवॉल्ट में ब्रिटिश को सपोर्ट किया और कुछ इस रिवॉल्ट में दूर रहे. सो दैट इज़ वाई दिस रिवॉल्ट गेट फेल्ड. द ब्रिटिश ऑर्गेनाइजर्स देमसेल्फ एंड ऑर्गेनाइज, उन्होंने अपने आप को 1857 के रिवॉल्ट के बाद उन्होंने अपना जो था हक जमाना शुरू कर दिया एंड क्रश द रिवॉल्ट सक्सेसफुली. नेम टू सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया एंड द सोशल इविल दे वांटेड टू रिमूव. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे. दो के नाम वी हैव रिटन देयर, राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर. और उन्होंने कौन कौन से इविल्स दे वांटेड टू रिमूव? दे वांटेड टू रिमूव कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा जिसको हम कहते हैं, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, गर्ल चाइल्ड को मार देना, चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी जो करा देते थे, सती प्रथा मतलब कि किसी हस्बैंड की डेथ के साथ 5 को भी जला देना. सो दिस काइंड ऑफ सोशल इविल्स दे हैव ट्राइड टू रिमूव. और उन्होंने उसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया कि एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली दीज इविल्स विल बी रिमूव्ड. So these are the question answers. Write it in your notebook. I'll send the PDF as well. You can write it from the PDF as well. And now this chapter is finished, students, and tomorrow we will be starting new chapter. Bye, students.